Hello student, today I am going to start the new topic ledger. So first we will start with meaning. So पहले हम लोग देखें meaning क्या है. What is the meaning of ledger? Ledger account. Ledger account is a summary of summary statement of transaction relating to a person, assets, liabilities, expenses and incomes which has taken place during a given period of time. So this is the meaning. So ledger account is a summary statement of transaction relating to a person, assets, liabilities, expenses and incomes which has taken place during a given period of time. तो इसका मतलब जो है एक साल में जो एक जैसा या पर्सन में भी डेटर और क्रेडिटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, assets either it may be current asset or fixed assets, and liability means either it may be current liability or fixed liability, and expense everything we are taking into ledger account. ये सारा जो है आपका जितना भी जो है पर्सन जितना भी अकाउंट होता है, assets हो, liability हो, पर्सन अकाउंट हो, नहीं तो एक्सपेंस, सारा जो है एक साल का पूरा जो है लेजर अकाउंट में दिखाते हैं. उसको बोलते हैं जो है समरी स्टेटमेंट. मीन्स तो एक साल का जो है जितना भी अकाउंट है सब आपको जो है लेजर में मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं लेजर. सो लेजर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग लेजर? सो लेजर क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको जो ऑलरेडी वो लर्न जर्नल एंट्रीज. इन जर्नल एंट्रीज वी आर रिकॉर्डिंग लॉट ऑफ ट्रांसैक्शन. Suppose we want to information for a particular information like cash book or sales book, it is very difficult to get what information from the journal. So why? Means there is a lot of multiple transactions are recorded under what journal. So that's why it is very difficult to locate the particular accounts very quickly from the journals. So that purpose only we are preparing ledger. जो है जर्नल में हम लोग बहुत सारा ट्रांसैक्शन लिखते हैं, जैसा बड़ा बड़ा कंपनी होने से उनको जैसे कि सेल्स के बारे में, कैश के बारे में, नहीं तो जो है आपको परचेस के बारे में जानकारी चाहिए तो जो है जर्नल से निकालना ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा. तो उसके वजह से जो है लेजर जो है बनाया जाता है. ये इसको बोलते हैं सेकंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं. ठीक है. सो इसको जो है लेजर बुक इज नोन एज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, और लेजर इज ए बुक विच कंटेन ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, नेमली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ये जो है कैसा बनाया जाता है, इसमें जो है सब कुछ जो है पर्सनल अकाउंट वो, रियल अकाउंट वो, नॉमिनल अकाउंट वो, नहीं तो जैसा कि मॉडर्न अप्रोच हो गया असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम. सो वो बेस में जो है ये सारा वो बेस में जो है लेजर अकाउंट जो है बनाया जाता है. सो नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लेजर. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ, why we have to prepare ledger? So ledger क्यों बनाना है? So first one, quick information about a particular account. Number two, information. Next one is information of expenses and incomes. Third one, preparation of trial balance. Number 4, helpful in preparing final account.
preparing final account, final accounts. Now listen here, now look at यहाँ देखिए अभी, so जो है quick information about a particular account. इसको मतलब suppose, so if I prepare ledger account means we can easily get information like sales account or purchase account, cash accounts. So that is one of the important role of ledger under what? Ledger. मतलब अगर आपको जो है लेजर आप बनाएंगे तो ईजिली जो है कोई भी अकाउंट के बारे में आपको जानकारी जो है तुरंत आपको मिल जाएगा. सो दैट इज अ फर्स्ट वन. सेकंड वन, इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपेंस और लॉसेस. सो वी नो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक्सपेंसेस एंड इनकम इन द बिजनेस. इफ यू आर प्रिपेयरिंग लेजर, वी विल प्रिपेयर सेपरेट different accounts, different types of expenses like salary account, wages account, rent account, advertisement expense like that. Likewise, in income also there are different types of incomes are there, rent received or discount received or dividend received. So if we are getting all the information from what? Ledger. तो अगर आप लेजर बनाएंगे तो आपको जो है बिजनेस में जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सबका बारे में हम लोग क्या करेगा, विल प्रिपेयर इंडिविजुअल अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बनेगा. और इनकम जो है आपको जैसे कि आपका रेंट हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो वो सब के बारे में भी अकाउंट बनेगा. तो इसलिए आपको क्या करेगा, सो ईजिली जो है इंफॉर्मेशन आपको लेजर के थ्रू से आपको मिल जाता है. नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सो विद द हेल्प ऑफ लेजर वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. So what is the use of trial balance? Means trial balance helping to find out the arithmetical accuracy in what? Ledger account. So to have जो है लेजर का मदद से जो है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. सो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, उससे जो है आपको जो है लेजर बनाने के बाद आपने जो भी अकाउंट बनाया सही है कि गलत है वो पता करने के लिए क्या मदद करता है, आपको ट्रायल बैलेंस जो है आपको हेल्प करता है. सो नेक्स्ट नंबर लास्ट वन, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. So after preparing trial balance, we will prepare final account. So with the help of final account, we know about the profit and loss of the business as well as financial position of the business. तो आपको जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, सो विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट. जो है फाइनल अकाउंट बनाया जाता है. फाइनल अकाउंट जो है उसमें से क्या मिलता है आपको, एक साल में जो है कितना प्रॉफिट हुआ, नहीं तो लॉस हुआ, लॉस कितना है, नहीं तो जो है कंपनी का पोजीशन क्या, एसेट कितना, लायबिलिटी कितना, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको जो है बिजनेस को ईजिली मिल जाता. सो दिस आर पर्पस ऑफ लेजर. सो पोस्टिंग, सो आई वांट टू रिकॉल पोस्टिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टिंग मीन्स, सो एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग लेजर ओनली विथ हेल्प ऑफ जर्नल. इफ यू आर ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर मीन दैट इज ए पोस्टिंग. जैसा कि आपको लेजर जो है आपका जर्नल एंट्री का मदद से जर्नल से बनता है, जर्नल एंट्री का मदद से, क्यों वहाँ पे जर्नल बनाने के बाद सेकंड प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का जो है लेजर है. तो जो जितना भी आप बनाएंगे जर्नल एंट्री उसको जो है लेजर में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लेजर में जो भी लिखेंगे जर्नल एंट्री उसको पोस्टिंग बोलेंगे. नाउ फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर. Now this is a format of ledger. So we know, so ledger accounts are divided into two parts, and that the ledger format is look like T format. This look like T format. So there are two sides are there. So this part, the left hand side part, we are calling as a debit side, and the same part in right hand side also we are having that same part. So this part we are calling as credit part, credit side. Here in both the side we are having 5 columns. First one is date column. First we will write name of the account, that means name of the ledger. Suppose we are preparing sales account means in the middle of the account we will write sales account, or we are preparing cash account means we will write cash account. So first one, here this part we will write debit. DR means that is a short form of debit, and CR means that is a short form of credit. So first one, that is date column. So already we prepare in journal entries also. So here also date column is there. यहाँ पे भी journal entry की तरह यहाँ पे भी आपको क्या date column रहेगा. So first we'll write year, then month, then date. Here we'll write debit account. So here JF means that is a page number of journal folio.
So we are preparing only with the help of journal. So that is, it is nothing but it is a page number of journal folio. So this is amount column. Here also that is a, here also same part we are getting. So same part we are having in second credit side also. So जैसा कि आपका डेबिट साइड में 4 कॉलम होता है, उसी तरह आपका क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम है. Now we'll see some of the example how to posting to ledger or how to prepare ledger. So example, business started on 1st April 2020. Rohit started business with cash rupees 2 lakhs. So this is the first one. Second one, goods purchased, or you can write on 2nd April 2020. So this is the first one, this is the second, goods purchased for cash rupees 1 lakh. Third example, on 3rd April 2020, cash sales rupees 50,000, and 4th April 2020, salary paid to employees rupees 10,000, and fifth one, on 5th April 2020, rent received rupees 2,000. So this is a transaction. First we will prepare journal, after that I will teach how to post into ledger. So what is the journal entries for first one? So the journal entry is, now Rohit is the owner and cash is coming inside the business. So first one is cash account debit to Rohit account. So Rohit means we can write capital indicate owner. Here the amount is rupees 2 lakh, here also 2 lakh. Now you see cash is coming inside the business, so it is the asset. So cash is coming, it is coming at real accounts. So what is the rule for real account? Means cash coming inside means we will make debit, and who is the giver here means Rohit. Rohit is the owner, is the giver. So उसका अकाउंट आपको क्या करना, क्रेडिट कर देना. Second one, journal entries, goods purchased for cash, it is a cash transaction. So what is the journal entries? Purchase account debit to cash account. So we know the nature of purchase is expenses, so it will comes under nominal account, it is expenses, comes under debit side. So purchase account debit, that is rupees 1 lakh, here also 1 lakh, and we paid cash is going outside, so cash account comes under credit side. So what is the journal entries for third one? Cash account debit to sales account, rupees 50,000, here also 50,000. So cash coming inside, so it is coming under real account, so it is coming inside the business. So that means it will come debit side, and we sold goods for cash means it is a income, so it will comes under credit side according to the rules of nominal account. So next one, salary paid. So salary we know that is a expense for the business, salary account debit to cash. So what is the amount? Rupees 10,000, here also rupees 10,000. So salary जो है आपका खर्चा है, आपका डेबिट में आएगा, कैश जो है आपको बाहर जा रहा है, सो आपका क्रेडिट में आ जाएगा. द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, रेंट रिसीव्ड रुपीज 2000. सो वन सेकेंड, द कैश इज कमिंग इनसाइड द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट. सो रेंट रिसीव्ड इट इज ए इनकम, इट विल कम्स अंडर क्रेडिट साइड. ये जो है रेंट रिसीव्ड जो है आपका इनकम है,
ये आपका क्रेडिट में आएगा, फिर 2000, हियर ऑल्सो 2000. Now you prepare journal entries. With the help of journal entries, now further I will prepare ledger account. जैसा कि ये सारा जर्नल एंट्रीज है, तो इसका मदद से हम लोग क्या जर्नल एंट्री को जो है आपको लेजर में जो है कैसा पोस्टिंग किया जाएगा, now we will see one by one. So how many accounts we have to prepare in this journal entries? So cash account, then capital account, कितना cash account बनेगा, capital account, then purchase account. So cash account already is there. यहाँ पे cash account है, sales account, then salary account, then rent received account. तो इतना सारा अकाउंट जो है आपको बनेगा. नाउ वी विल प्रिपेयर 6 अकाउंट्स. जैसा कि आपका वो जर्नल जो बनाया था, तो उसमें से कितना अकाउंट्स बनेगा, 6 अकाउंट्स बनेगा. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट रिसीव्ड. जो अकाउंट जो रिपीट होता है एक ही जो है, आप जैसा कि कैश अकाउंट 2-3 में आने से जो है जितना भी है कैश का इसमें आ जाएगा. सो कैश अकाउंट, सो फर्स्ट सो वी हैव टू प्रिपेयर 6 अकाउंट्स. 6 अकाउंट मैं बना रहा हूँ, देखिए. सो फर्स्ट अकाउंट नेम इज कैश अकाउंट. सो व्हाट इज द कैश अकाउंट? सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो ऑलरेडी हम लोग देखें रुपीज़ 2 lakhs, here also rupees 2 lakhs. So how to post into ledger? Now cash is debit side. Now cash is, so which part is debit under cash account? Me this part is cash, this part is debit side, this part is credit side. Now cash account is showing on debit side. मतलब cash account जो है कौन सा side है, debit side है. So debit side. So what is the amount? 2 lakhs. Rupees 2 lakh. Now suppose we are writing here also to one thing I want to say, if you are writing anything this side, so we will start with the 2. Suppose you are writing anything on credit side, means we will start with by. अगर कोई चीज़ अगर आपको स्टार्ट करना, अगर इस साइड आप लिख रहे हैं तो 2 से स्टार्ट करना, अगर इस साइड लिख रहे हैं तो by से शुरू करना. Now cash account rupees is 2 lakh. Now I written on the this side, debit side, क्योंकि यहाँ पे जो है कैश अकाउंट कौन सा साइड है, डेबिट में मैं लिख दिया. जैसे कि सपोज हियर आई एम राइटिंग टू कैश. सो व्हाट विल हैपन मीन्स, सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. सो व्हाट विल हैपन बट कैश, मतलब हाउ द कैश इज रिसीव्ड. सो आप ये नहीं बोल सकते कि पैसा कहाँ से आया, तो इसलिए क्या करना, सो वी शुड नॉट राइट कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वी हैव टू राइट ऑपोजिट एंट्री, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंट्री. मतलब ये जो पैसा कहाँ से आया, तो आपको ये यहाँ पे कैश करके नहीं लिखना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखना है, कैपिटल अकाउंट. तो उसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश जो है आपका कैपिटल से आया है. सो हियर वी विल राइट ईयर 2020 April 1st, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो फर्स्ट वन वी आर posted. Second one capital account. So where is capital account? So capital account is showing on credit side. So capital account जो है credit में है. So this part is a credit. So first we'll write year 2020 April 1st. Here we'll write rupees 2 lakh. Now what we'll write under particular column? We'll write cash account. ये नहीं लिखना कि by capital नहीं लिख देना, by cash account, क्योंकि पैसा जो है इसका करस्पॉन्ड एंट्री, कैपिटल का करस्पॉन्ड एंट्री जो है आपको क्या लिखना है, सो कैश बाय कैश अकाउंट लिखना. अगर आप यहाँ पे कैपिटल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सो पैसा जो है कैसा आया का पता नहीं चलेगा. सो कैपिटल लिख दे तो रॉन्ग हो जाएगा. सो दैट मीन्स विल राइट करस्पॉन्ड एंट्री, सो बाय कैश अकाउंट. दैट मीन्स कैसा, हाउ टू पोस्टिंग टू लेजर मीन्स, पहले डेबिट फर्स्ट जो है आपको कौन सा पोस्टिंग करना, फर्स्ट विल पोस्टिंग द डेबिट वन, देन विल गो टू द सेकंड वन. तो कैश अकाउंट जो है डेबिट में, डेबिट पार्ट में आ जाना. तो उसमें जाके क्या लिखना, पहले ईयर लिखना, देन मंथ, देन डेट. यहाँ पे लिखना करस्पॉन्ड एंट्री, ऑपोजिट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब जो है पैसा जो है कैपिटल से मिला है. देन जे मीन्स इट इज़ नथिंग बट इट्स ए जर्नल पॉलिसी. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हियर आई गिवन द नंबर 1 मीन्स हियर विल राइट 1, और यहाँ पे 2 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा. सेकेंड वन capital. So second account we have prepared that capital account I posted under what, credit side of capital account by cash account rupees 2 lakh. So first one is posted. Second one is number second journal entries, purchase account debit
to cash account, rupees 1 lakh, here also 1 lakh. अभी जो है आपको क्या है, परचेस अकाउंट. सो फर्स्ट वन इज परचेस अकाउंट, सेकंड वन इज कैश अकाउंट. सो वेयर इज परचेस अकाउंट, दिस इज अ परचेस अकाउंट. नाउ द परचेस अकाउंट इज डेबिट साइड. सो डेबिट साइड आ जाना. ईयर जो है आपको क्या आ जाए, ईयर इज 2020 April 2nd. So first write amount rupees 1 lakh. Now what we'll write under particular column is we'll write corresponding entry to cash account. क्या लिखना है, to cash account. जब इस साइड डेबिट साइड लिखेंगे तो टू से शुरू करना, अगर आप क्रेडिट साइड आगे लिखते हैं तो बाय से शुरू करना. तो ये वाला पोस्टिंग हो गया. नाउ कैश, कैश इज क्रेडिट. सो क्रेडिट में जाके क्या करना है, 2020 April 2nd. बाय कैश का करस्पॉन्ड एंट्री, ऑपोजिट एंट्री जो है आपको क्या आएगा, बाय परचेस अकाउंट. बाय परचेस अकाउंट रुपीज़ 1 लाख. सो दोनों पोस्टिंग हो गया. नंबर 3, थर्ड वन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट rupees 50,000, here also rupees 50,000. Now which one is debit? Cash account. So cash account is here, so it is a debit. Cash account is in debit side. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका April 3rd April टू सेल्स अकाउंट. जो है कैश को जो है अपोजिट एंट्री कौन सा है, सेल्स अकाउंट रुपीज़ 50,000. एंड सेकेंड वन इज सेल्स अकाउंट. Where is sales account? Sales account here. Now it is showing credit side. मतलब ये कौन सा साइड दिखा रहा है, मतलब क्रेडिट में. Now it is in credit. So now come to the credit side. 2020 3rd April. So आपको क्या लिखना है, बाय कैश करके लिखना है. बाय कैश अकाउंट रुपीज़ 50,000. सो दोनों पोस्टिंग हो गया. नाउ फोर्थ वन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो सैलरी अकाउंट आपको डेबिट में, विच वन इज डेबिट मीन्स सैलरी अकाउंट. सेकेंड वन इज दैट इज कैश अकाउंट. सो वेरी सैलरी हियर, सैलरी अकाउंट. नाउ डेबिट में पहले ईयर लिखना है 2020 4th April टू कैश अकाउंट रुपीज़ 10,000. इसका करस्पॉन्ड एंट्री. नाउ सेकंड वन इज क्रेडिट कैश अकाउंट. कैश अकाउंट कहाँ, यहाँ है. सो इसका जो है क्रेडिट में जाकर क्या लिखना है, करस्पॉन्ड एंट्री लिखना है. फोर्थ अप्रैल बाय सैलरी अकाउंट रुपीज़ 10,000. नाउ फिफ्थ वन, कैश अकाउंट डेबिट रेंट रिसीव्ड अकाउंट rupees 2,000, here also rupees 2,000. now which one is debit? Cash account. कैश अकाउंट में डेबिट में जाके क्या लिखना है, 5th April टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट. जो कैसा मिला, रेंट से मिला. कितना मिला, 2,000 रुपया. अभी जो है पहला डेबिट हो गया. सेकेंड वन दैट इज रेंट रिसीव्ड इज ए क्रेडिट में जाके क्या लिखना है, 2020 April 5 बाय कैश अकाउंट रुपीज़ 2,000. तो इसी तरह जो है आपको क्या करना, पोस्टिंग करना है. पहले जो है डेबिट आएगा, जिसमें डेबिट में पोस्टिंग करते हैं सेम नाम नहीं लिख देना, जैसे कैश अकाउंट में जाके कैश करने लिख देना, उसको करस्पॉन्डिंग लिखना है. उसी तरह जैसा पहला जो डेबिट आफ्टर कंप्लीटिंग डेबिट विल गो टू द सेकंड वन दैट इज अ क्रेडिट. तो सेम प्रोसीजर विल फॉलो. जैसा कि कैपिटल अकाउंट में जब लिखेंगे तो आपको क्या करना, कैपिटल आर का नहीं लिख देना, उसका ऑपोजिट में जो रहेगा बाय कैश करके लिख देना. सो दिस इज अ वे टू प्रिपेयर व्हाट, लेजर अकाउंट. नाउ वी हैव टू बैलेंसिंग द अकाउंट. मतलब इसको क्या करना, बैलेंसिंग करना, क्लोज करना. हाउ टू क्लोज दिस अकाउंट. नाउ वी विल टोटलिंग बोथ द साइड. दोनों साइड आपको क्या करना है, टोटल करना है. तो ऐसे ही आप छोड़ नहीं सकते हैं. जो है 2 लाख. सो दिस डेबिट साइड 2 लाख प्लस 50, 2,50,000 प्लस 2,000, 2,52,000. सो डेबिट साइड में कितना है, 2,52,000 है. दिस साइड
1,10,000. So which side we are getting more means, so डेबिट साइड, कौन सा साइड ज़्यादा अमाउंट है मीन्स हायर अमाउंट कौन सा साइड है, दिस साइड. तो उसको क्या करना है, दोनों साइड आपको, जिसे टोटल कॉलम बोलते हैं इसको. सो यहाँ पे भी 2,52,000 लिखना है. हियर ऑल्सो विल राइट 2,52,000. तो अभी इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं. हियर वी गॉट ओनली 1,10,000. तो हाउ टू मेक इक्वल इन बोथ द साइड. सो कैसा इसको इक्वल बनाएंगे, 2,52,000 माइनस 1,10,000. तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना है. तो माइनस करने से कितना आएगा, 1,42,000 आ जाएगा, 1,42,000. तो इसको क्या करेंगे, एक्चुअली नॉर्मली लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयरिंग वीकली और मंथली. तो यहाँ पे जो है आपको क्या, वो हिसाब से जो है अप्रैल 30th आ जाएगा. यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन. सो कैरी डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस है ये. सो आप जो है, आपको ये सारा खर्चा होने के बाद पैसा, इतना पैसा आपको क्या है बच गया, ये जो है आपको क्या करेगा, अगला महीना के लिए जो है आपको क्या होगा, यूज़ होगा. जैसे कि आपका नेक्स्ट मंथ जो है अप्रैल के बाद क्या है, मई है. मई 1 को क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो ये आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. सो कितना पैसा बाकी आपका हाथ में, 1,42,000 है. सो आपका टोटल अमाउंट था 2,52,000. उसमें से जो है आपको क्या बच गया, कितना खर्चा अच्छा होने के बाद 1,42,000. सो ये अमाउंट को क्या करना है, दिस अमाउंट विल बी यूज इन द नेक्स्ट मंथ. तो अगला महीने क्या करेंगे, ये अमाउंट को यूज़ करेंगे. सो हियर इन कैपिटल अकाउंट देर इज़ ओनली वन अमाउंट इज देयर इन क्रेडिट साइड. तो ये नहीं कि मतलब एक ही साइड बोल के क्या नहीं करना, छोड़ देना नहीं, इसको भी आपको क्या करना, क्लोज करना. ₹2 लाख, हियर आल्सो 2 लाख. हियर यहाँ पे जो है आपको क्या ईयर लिखना है. फिर उसको जो है मंथ का जो है, क्योंकि इसको जो है लेजर जो नॉर्मली प्रिपेयरिंग फॉर 1 मंथ, एक महीना का जो है बनाया जाता है. तो हिसाब से जो है इसको क्लोज करना है, अप्रैल 30th आएगा. हियर टू बैलेंस कैरी डाउन, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस. CD मतलब कैरी डाउन, BD मतलब ब्रॉड डाउन. सो ये जो है आपको कैरी डाउन नीचे लेके जाना है, ब्रॉड मतलब वहाँ से लेके, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस. दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस. नाउ 0 माइनस 2 लाख, विल कम ₹2 लाख. सो नाउ here we'll write May 1st by balance brought down ₹2 लाख. अभी देखिए आपको जो साइड आपको क्लोजिंग रहेगा उसको ऑपोजिट साइड में ओपनिंग आएगा. नाउ दिस केस फर्स्ट वन कैश अकाउंट, वी गॉट द क्लोजिंग बैलेंस इन क्रेडिट साइड. सो दैट मीन्स वी विल गेट ओपनिंग बैलेंस इन द व्हाट, ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स डेबिट साइड. जैसा कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था, उसको ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट आ गया. उसी तरह इन कैपिटल अकाउंट वी गॉट closing balance and debit side and we got what, opening balance credit side. क्योंकि आपको पता, so all the assets of the debit balance will be what, so all the assets will be shown in debit side. जो है जितना भी asset आपको डेबिट में दिखाएगा और जितना भी आपका इनकम्स कैपिटल लायबिलिटी उसका हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड होगा, रूल के मुताबिक जो है आपका क्रेडिट में रहेगा. थर्ड वन इज परचेस अकाउंट. सो इन परचेस अकाउंट वी हैव ओनली द डेबिट साइड, वी हैव अमाउंट इन डेबिट साइड ओनली. मतलब आपको जो अमाउंट जो है डेबिट साइड में खाली है. तो 1 सेकेंड आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है. तो टोटल कॉलम में दोनों सेम अमाउंट आएगा. हियर विल राइट ईयर 2020 अप्रैल 30th बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्योंकि एक्सपेंसेस है, इसको ओपनिंग बैलेंस जो है आपको क्या है इस साइड आ जाएगा. May 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ₹1 लाख. here also 1 lakh. So ये देखिए here also we are having the balance in credit side only. मतलब ये आपका credit side खाली अमाउंट है, we are having the figure only credit side. So the same amount will take in debit side also. same amount को आपको क्या करना है, debit side को भी लेके जाना. So पहले year लिखना 2020 April 30th to balance carry down ₹50,000. तो उससे यही जो है आपको क्या क्लोजिंग बैलेंस जो अपोजिट जो है आपको क्या होगा, ओपनिंग बनेगा May 1st बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000. एंड द नेक्स्ट वन सैलरी अकाउंट. सैलरी में जो है सिर्फ डेबिट में है. सो अमाउंट इज ओनली इन डेबिट साइड. ₹10,000 here also ₹10,000. 2020
April 30th by balance carried on. So opening balance will be in debit side May 1st to balance brought down is 10,000. The last one it is a income. So आपको जो है आपको क्रेडिट में है तो उसको क्या करना, सेम अमाउंट को जो है आपको डेबिट में भी दिखाना. वी हैव टू शो इन डेबिट साइड आल्सो रुपीज़ 2000 माइनस 0 2020 April 30th to balance carried on, and the opening balance will be in debit side. So May 1st by balance brought down is 2000 by balance brought down जो है आपका है. तो इसी तरह जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेजर बनाना है. तो इसमें जो है आपको ये सबको बोलेंगे पोस्टिंग ऑफ सिंपल posting. Simple posting means there will be one debit and one credit. In next class we will see how to post in compound journal entry, as well as we will see the opening journal entries. So thank you.